बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाटर। इस चैप्टर में भी मौजूद तमाम टॉपिक्स को हम एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन है जो एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जाता है, वो ये है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे इट्स importance is because of two reasons. First, it is an essential and major component of each and every living cell. For example, human body consists of about 70% water. Secondly, it provides an environment for animals and plants that live in water. So all living organisms owe their life to water. इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। All living organisms owe their life to water. We use water in daily life for drinking, cooking and washing purposes. Next topic है occurrence of water. ये पेपर में एज अ शॉर्ट और एज अ MCQ पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, राइट द occurrence ऑफ वाटर। तो आप यहाँ से बताएंगे द ओशन कंटेन अबाउट 97% of world's water. The rest of water is in the form of glaciers, ice caps, groundwater and inland water. It is also present in atmosphere in the form of water vapors. Sea water is unfit for drinking and agricultural purposes due to high percentage of dissolved water. Only 0.2% of water on earth is potable, that is for drinking purposes. यहाँ पर एक और तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है why sea water is unfit for drinking and agricultural purposes. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे sea water is unfit for drinking and agricultural purposes due to high percentage of dissolved salts. यहाँ तक इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओशन कंटेन 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर। ओनली 0.2% ऑफ द अर्थ वाटर इज only 0.2% of the total water on the earth is potable. Percentage of glacier and ice cap is atmospheric water. Percentage of ground water is, percentage of inland water is। नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ग्राउंड वाटर का ऑप्शन, ग्राउंड वाटर के बारे में पूछा जाएगा तो आप 0.6% को सिलेक्ट करेंगे। एटमॉस्फेरिक वाटर के बारे में पूछा जाएगा तो आप 0.01% को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एज अ शॉर्ट भी ये पेपर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपसे इस तरह पूछा जाएगा, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो फिर आप वाटर की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन। One atom of oxygen combines with 2 atoms of hydrogen to form 1 molecule of water. Pure water is a clear, colorless, odorless and tasteless liquid with following properties. सबसे पहली प्रॉपर्टी है it is neutral to litmus. Second प्रॉपर्टी है its freezing point is 0 degree centigrade and boiling point is 100 degree centigrade at sea level. Its maximum density is 1 gram per centimeter cube at 4 degree centigrade. It is excellent solvent for ionic as well as molecular compounds. It has usually high heat capacity which is about 6 times greater than that of rocks. The specific property of water is responsible for keeping the earth temperature within limits. Would have been too high to bear and night time temperature would have been too low to freeze everything. It has high surface tension. This unique property of water is responsible for its high capillary action.
स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 joule per gram per Kelvin. Water is neutral to litmus. यहाँ पर कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन कैपिलरी एक्शन। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लैंड प्लांट। ये एज अ MCQ भी पेपर में पूछा जा सकता है। कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, अकरेंस ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।